Well, so today we are taking up fire loss of profit. Fire loss of profit insurance. Very interesting topic this is. So try to understand this product. This is very interesting. So when you are giving this policy to any customer, you have to keep in mind two things. Two conditions are there. Condition number one. Without fire policy, you cannot give fire loss of profit policy. Without fire policy can be Sukshma Udyam, Laghu Udyam, standard fire and special peril policy. If you are giving a fire policy, then only you will give the FLOP section. Here the fire policy is called material damage policy. And condition number two is, if a claim is payable under the fire policy for the loss or damage caused by the insured peril, then only the claim will trigger under FLOP policy. अगर फायर पॉलिसी में कोई क्लेम पे हुआ है तो ही FLOP पे करेगी, नहीं तो फायर पॉलिसी में रिजेक्ट हो गया तो यहां भी रिजेक्ट हो जाएगा. और ये दोनों कंडीशंस मस्ट हैं. यानी कि आप फायर पॉलिसी के बिना FLOP नहीं दे सकते और फायर पॉलिसी में क्लेम पे किए बिना FLOP में क्लेम नहीं पे कर सकते. These are two preconditions. And these are three names of the policy. Don't get confused if your customer is asking, give me business interruption insurance, give me consequential loss insurance. They are the name of the same fire loss of profit policy. Only thing is, if it is given with the fire policy, this will become FLOP, fire loss of profit insurance. And if it is given with the machinery breakdown insurance, then it will become machinery loss of profit insurance. So loss of profit policy is available under two sections only, fire and machinery. That's all. So don't get confused over these three different names. Because in foreign, this is more popular by the name of business interruption insurance. Now you can sell it in four ways. चार तरीके हैं इस पॉलिसी को बेचने के. One, if you are giving your customer an IR policy, that is called industrial or risk insurance, that can be given to a corporate only over 50 crore sum insured. Sum insured has to be over 50 crore. In that case, FLOP is a section in that policy, inbuilt section. Fire, FLOP, EI, machinery breakdown, burglary, like that. So that is for the corporate sector. Second way is fire plus FLOP. If you are giving a fire policy to any factory, a small or medium enterprises,
commercial institutions, you can get another proposal form signed and give a separate FLOP policy. Because fire plus FLOP is the combination. Fire policy you can give alone, but FLOP policy you cannot give alone. Third method is BPP plus FLOP. This business protector policy has 12 sections, but none of them is loss of profit section. That means under business protector policy, there is no FLOP section covered under the packages. But if you want to give the FLOP also, along with the business protector policy, you can give by getting a separate proposal form signed. This is used for educational institutions, medical institutions, hotel and offices, etc. And the last method is package policies, other package policies. Say for example, shopkeeper, office care, educational shield, hotel and restaurant. These are the policies designed according to the requirement of different sections. अब कॉलेज की जो रिक्वायरमेंट है और एक 5 स्टार होटल की जो रिक्वायरमेंट है, दोनों अलग अलग होंगी. तो कॉलेज वालों के लिए एजुकेशनल शील्ड है, 5 स्टार होटल वालों के लिए होटल एंड रेस्टोरेंट पॉलिसी है. लेकिन जब आप किसी को पैकेज पॉलिसी दे रहे हैं या अम्ब्रेला पॉलिसी दे रहे हैं, तो उनमें सब में बिजनेस प्रोटेक्टर के अलावा FLOP सेक्शन दिया हुआ है. कस्टमर फायर को भी सेलेक्ट कर सकता है, FLOP को भी सेलेक्ट कर सकता है. फायर को सेलेक्ट करना मैंडेटरी है, FLOP को भी चॉइस से कर सकता है. अगर फायर सेक्शन सेलेक्ट नहीं किया है तो पॉलिसी नहीं मिलेगी, पैकेज पॉलिसी. FLOP नहीं किया तो मिल जाएगी, फायर सेक्शन कंपल्सरी है. लेकिन अगर पॉलिसी किसी दुकानदार को दी जा रही है, शॉपकीपर, if you are insuring a shopkeeper, that means there are few conditions. What conditions are there? These 4 conditions are there. First, sum insured will not exceed 25% of the fire sum insured. Sum insured will not exceed 25% of the fire sum insured. Means, a fire policy you have given for 40 lakh rupees, you can give a FLOP for 10 lakh rupees. Indemnity period will not exceed 3 months. Premium will be 360 rupees per lakh plus GST. And minimum premium is rupees 500 plus GST. So all these 4 conditions are applicable to Shri Shopkeeper Insurance Policy. Except Shri Shopkeeper, for any other policy there is no limit at all. Any sum insured, any indemnity period from 3 months to 3 years, premium according to premium rates, minimum premium is same 500 plus GST. So this is the way how this policy can be issued, and if it is given to the shopkeeper, then the 4 conditions would be applicable. Now when you are giving a FLOP policy, what is the purpose? किस पर्पज के लिए दे रहे हैं आप
सिर्फ टू कवर फाइनेंशियल लॉसेस ओनली। वो फाइनेंशियल लॉसेस जो कि इंश्योर्ड पेरिल से कोई नुकसान हुआ है, उसकी वजह से बिजनेस इंटरप्ट हुआ है और उस इंटरप्शन की वजह से फाइनेंशियल लॉस हुआ है। क्योंकि फायर पॉलिसी में बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, स्टॉक, फर्नीचर, फिक्चर्स के सभी इंश्योर्ड ब्लॉक वाइज दिए जाते हैं। हाँ, ओके। मेरे पास तो कोई रिक्वेस्ट नहीं आ रही। आप भी ज्वाइन कर सकते, रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर सकते हो। हाँ हाँ, आप करेंगे तो भी एक्सेप्ट हो जाएगा। अगर कोई ज्वाइन कर रहा है, मुझे किसी की रिक्वेस्ट दिखाई नहीं दे रही है। ओके, गुड गुड, एनीबडी कैन डू इट। ओके, so that means fire policy will cover only financial loss, that is loss of income or loss of profit. Rest of the damages relating to the building, to the plant and machinery, to the furniture fixtures and to the stock will not be covered under FLP policy. For that purpose there is a policy called fire insurance. आप बिना फायर पॉलिसी के इसलिए तो FLP नहीं दे सकते क्योंकि अगर कोई लॉस हुआ है, फायर पॉलिसी के पैरिल से लॉस हुआ है, तो उसका क्लेम तो फायर पॉलिसी देगी। लेकिन उस लॉस की वजह से आपका बिजनेस रुक गया है, ठप हो गया है, बंद करना पड़ गया है और उसकी वजह से इनकम का लॉस हो गया है या प्रॉफिट का लॉस हो गया है, दैट लॉस ऑफ इनकम और लॉस ऑफ प्रॉफिट इज पेएबल अंडर द FLP पॉलिसी ओनली। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन फायर एंड FLP। Now to whom you can give the FLP policy? किसको दे सकते हैं आप? 3 conditions are there. उसको जिसके पास फायर पॉलिसी है या फायर पॉलिसी साथ में ले रहा है। Proposer must have fire policy with it. Stand-alone FLP is not allowed. Stand-alone fire policy can be given, but FLP cannot. आप फायर पॉलिसी को अकेले दे सकते हो लेकिन FLP को अकेले नहीं दे सकते। FLP को उसी कस्टमर को देंगे जिसका बिजनेस कंटिन्यू है। अगर 6 महीने पहले या 1 साल पहले या 2 साल पहले बंद हो गया तो उसको तो देने का मतलब नहीं, क्योंकि हम तो उसकी इनकम को कवर कर रहे हैं, इनकम तो वहाँ है ही नहीं। थर्ड कंडीशन इज प्रॉपर मस्ट बी अर्निंग इनकम और प्रॉफिट। तो इनकम और प्रॉफिट वुड बी देयर ओनली व्हेन द बिजनेस इज कंटिन्यूड। If the business is not continued, there is no income, no profit. So all these 3 conditions are must. Fire policy has to be there, business must continue, and there must be income or profit out of that business. So what is the difference between fire and FLP? Fire policy is a material damage policy here. The fire policy will cover material damage. बिल्डिंग को नुकसान है, प्लांट एंड मशीनरी को है, स्टॉक को है, फर्नीचर को है, वो फायर पॉलिसी में पेबल है। FLP में क्या पेबल है? ग्रॉस प्रॉफिट को नुकसान हुआ है या इंक्रीज कॉस्ट ऑफ वर्किंग इंक्रीज हो गई है जिसकी वजह से लॉस हो रहा है, ये इनकम कवर की जाए। इसका फ्लो चार्ट देखिए जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि ये पॉलिसी में रिस्क क्या कवर होती है। फ्लो चार्ट की इवेंट इसी ऑर्डर में होनी चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज अ मटेरियल डैमेज पॉलिसी, दैट इज फायर पॉलिसी। इन फायर पॉलिसी देयर इज एन इंडेमनिफाइबल लॉस, मीन्स द लॉस कॉल्ड बाय एन इंश्योर्ड पेरिल, देन ओनली द पॉलिसी विल इंडेमनिफाई द लॉस।
Then interruption in production process. Because of that loss, the business process has been interrupted, stopped, shut down. No production, no output, no manufacturing, no sale, no service. Maybe for some time. जैसे बाढ़ आ गई, बाढ़ में पानी भरा हुआ, दुकानें बंद हो गई, दीवारें गिर गई, सामान खराब हो गया, डैमेज हो गया. अब बाढ़ की रिस्क तो फायर पॉलिसी में कवर है, क्लेम पे होगा, एफएलओपी में भी होगा. Interruption in production process, and then reduction in sales turnover. Because of that interruption, there is a reduction in sales turnover. क्योंकि दुकान ही बंद है या दीवार ही गिर गई या सामान ही डैमेज हो गया, तो सेल्स टर्नओवर कहाँ से होगा? और सेल्स टर्नओवर नहीं है, इसलिए लॉस ऑफ इनकम है, लॉस ऑफ प्रॉफिट है. सारी की सारी सीक्वेंस इसी इवेंट्स की सीक्वेंस ऐसे ही चलेगी. और इसका बेसिक ऑब्जेक्ट ये है कि जो फर्स्ट स्टेज है मटेरियल डैमेज पॉलिसी, यहाँ फायर पॉलिसी दी जा रही है, और लास्ट जो है लॉस ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट की, यहाँ एफएलओपी दी जा रही है. मतलब फायर पॉलिसी आपकी फर्स्ट स्टेज पे काम आ रही है, एफएलओपी पॉलिसी लास्ट स्टेज पे काम आ रही है. There has to be material damage policy, and that material damage policy and indemnifiable loss is there. Because of that loss, the production is stopped or interrupted, and because of that interruption, there is a loss, reduction in sales turnover, and because of sales turnover, there is a loss of income. The sequence will run into the same order of events. How the sum assured will be decided? Anticipated gross profit. Suppose कोई फैक्ट्री लेना चाह रही है एफएलओपी पॉलिसी, पिछले साल उसका ग्रॉस प्रॉफिट 12 लाख था, इस साल वो कितना ले? 12 लेना चाहे 12 ले सकते हैं. उसे लगता है इस साल उनका टारगेट प्रॉफिट का 15 है, 15 ले सकते हैं. उन्हें लगता है बिजनेस इस साल डाउन जाएगा, 8 ही रह जाएगा, तो 8 ही ले सकते हैं. एंटिसिपेट, नॉट द सेम टर्नओवर व्हिच वाज इन प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर. एनुअल एंटिसिपेटेड ग्रॉस प्रॉफिट एज पर द चॉइस ऑफ द कस्टमर्स. पॉलिसी में 3 पीरियड होते हैं, तीनों इंपॉर्टेंट होते हैं. पहला तो पॉलिसी पीरियड जो कि नॉर्मल सभी पॉलिसी में होता है, 12 महीने का. एनुअल है पॉलिसी, इसलिए आपने 1 जनवरी को एफएलओपी पॉलिसी ली, 1 जनवरी 2024 को, तो 31 दिसंबर 2024 का एक्सपायर हो जाएगी. दिस इज नॉर्मल पॉलिसी पीरियड. सेकेंड इज इंडेमनिटी पीरियड. अभी इंडेमनिटी पीरियड इंपॉर्टेंट. Indemnity period means estimated maximum period required for normal business operations to be restored following a loss. Indemnity period उस पीरियड को कहते हैं कि आपका किसी इंश्योर्ड पेरिल से लॉस हो गया तो आपको कितना मिनिमम टाइम उस बिजनेस को रिस्टार्ट करने के लिए चाहिए. मान लिया आग लग गई, कपड़े का 3 मंजिल का शोरूम है. अब आपको 3 मंजिल के शोरूम को रेनोवेट भी करना है, स्टॉक भी मंगाना है, आग लग से जो नुकसान हुआ उसको हटाना भी है. कितना टाइम चाहिए? 3 महीने, 6 महीने, 9 महीने, 12 महीने, 18 महीने, 24 महीने, 3 साल. ये इंश्योर की चॉइस पर. सिर्फ शॉपकीपर इंश्योरेंस में 3 महीने से ज़्यादा नहीं देंगे, बाकी कितना भी 3 महीने से 3 साल तक का हो सकता है. तो पॉलिसी पीरियड, इंडेमनिटी पीरियड, और तीसरा इंटरप्शन पीरियड. व्हाट इज दिस इंटरप्शन पीरियड? एक्चुअल पीरियड ऑफ इंटरप्शन स्टार्टिंग फ्रॉम द डेट ऑफ लॉस.
टिल द डेट नॉर्मल ऑपरेशन हैज बीन रिस्टोर्ड। जिस डेट को लॉस हुआ है उस डेट से बिजनेस को रिस्टोर करने में कितना टाइम एक्चुअली लगा। अब ये इंडेमनिटी पीरियड से कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। सपोज यू हैव सेलेक्टेड इंडेमनिटी पीरियड ऑफ 6 months, while the actual period of interruption is only 4 months. Insurance company will pay the lower of the two. Insurance liability is restricted to lower of the two. जो कम है उतने टाइम का पे कर देगा। इसका उल्टा भी हो सकता है। Indemnity period selected is for 6 months. Business was interrupted for 8 months. So here the indemnity period of 6 months is lower. Insurance company will pay for 6 months. I give you a practical example of the dates. Let's see. Policy period is from January 1 to December 31. 1 year. This is policy period. Now, on 1st March there is dead loss. Indemnity period selected is 9 months. So from 1st March to 1st December there are 9 months. But the business was actually interrupted till February 15. So that period is longer. That period, business interruption, is longer period. So insurance company will pay the claim for the lowest of the two. अगर indemnity period short है तो indemnity period का claim पे हो जाएगा। एक और एग्जाम्पल interruption period का। Factory is running, production is continuing. After 2 months there is a loss. Indemnity period of 6 months is there. But the business started after 3 months only and recovered within 3 months. Insurance company will pay for 3 months only. क्या पे करेगी इंश्योरेंस कंपनी? What is the amount payable? That is gross profit. How this gross profit and net profits are calculated? What is the actual loss of income the insurer suffered? Gross profit minus fixed cost is equal to net profit that is payable. In case there is a profit, company will pay nothing. If there is a loss of profit, then company will pay. If the fixed cost is more than the gross profit, then there is a net loss. So when you are calculating, जब आप ये प्रॉफिट निकालते हैं तो आपको सारे खर्चों का हिसाब किताब रखना पड़ता है। ये अकाउंटिंग का काम है, क्योंकि जितना एक्चुअल लॉस हुआ इंश्योरेंस कंपनी उतना ही पे करेगी। उसके लिए बुक्स ऑफ अकाउंट्स भी मांगेगी। बुक्स ऑफ अकाउंट से ये भी पता करेगी कि एक्चुअली लॉस हुआ भी या नहीं हुआ। अब कई बार क्या होता है कि लॉस हुआ, जैसे बाढ़ आ गई, आग लग गई, फैक्ट्री बंद हो गई, लेकिन कुछ खर्चे अभी भी चालू हैं। कोई प्रोडक्शन नहीं हो रहा, कोई मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो रही, कोई आउटपुट नहीं हो रहा, लेकिन स्टैंडिंग एक्सपेंसेस आर स्टिल कंटिन्यूइंग बिकॉज दीज आर द एक्सपेंसेस विच विल कंटिन्यू टू अकर रेस्पेक्टिव ऑफ द प्रोडक्शन लेवल। फॉर एग्जाम्पल इंश्योरेंस प्रीमियम, रेंट ऑफ बिल्डिंग, सैलरी, डिविडेंड, इंटरेस्ट ऑन लोन, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट, व्हीकल रेंट। Factory will continue to pay. Production is there or not. There is another case where the variable expenses are there which are stopped when the production is stopped. जैसे प्रोडक्शन बंद हुआ, ये खर्चे ही बंद हुए।
जैसे कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल, फ्रेट इनवर्ट, इलेक्ट्रिसिटी, लेबर कॉस्ट। अब फैक्ट्री बंद हो गई तो ना तो लेबर को कुछ मिलेगा, ना फिर इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा होगा, ना रॉ मटेरियल का। So these vary with the production level. If the production is there, these expenses are there. If the production is stopped, these expenses will stop. तो ये जो रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट निकलेगा या टर्नओवर पर निकलेगा, ये परसेंटेज में भी निकाला जा सकता है। जैसे 10 लाख पर 6 लाख 50 हज़ार का खर्चा हुआ तो इसका मतलब 65%। तो व्हाट इज कवर्ड अंडर द पॉलिसी? If it is gross profit, then what does gross profit includes? क्या है gross profit में, क्या क्या शामिल है? Standing charges plus net profit plus increase in cost of working. Insurance company will pay the claim for this. कैसे निकलेगा ये? सेल्स टर्नओवर ज़्यादा है, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कम है, तो आपका ग्रॉस प्रॉफिट निकलेगा। सेल 10 लाख की है, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट 6 लाख की है, तो 4 लाख का आपका ग्रॉस प्रॉफिट। इस 4 लाख में और भी खर्चे शामिल हैं, क्योंकि ये ग्रॉस है, नेट प्रॉफिट नहीं है। उसमें से वो खर्चे भी निकाल दिए जाएंगे तो नेट आ जाएगा। पॉलिसी का सम इंश्योर्ड जो रहेगा वो अकॉर्डिंग टू इंडेमनिटी पीरियड रहेगा। इफ द इंडेमनिटी पीरियड सेलेक्टेड इज लेस देन 12 months, द प्रीमियम विल रिमेन द सेम फॉर 1 year. But if the indemnity period is more than 1 year, say 15 months, 18 months, 24 months, 28 months, 30 months, like that, premium will be doubled. If it is 24 months, premium will be 1.5 time, it is 18 months. Premium will be 2.5 time if it is 30 months. Now, what is covered under FLOP policy? Same perils which are covered under the fire policy. Because if the fire policy is paying the claim, then only FLOP policy will pay the claim. Fire policy perils are covered, fire policy add-ons are covered under FLOP also. Means the same perils which are covered under the fire policy are also covered under the FLOP policy. If the fire policy is paying the claim, then only the FLOP policy will pay the claim. फायर पॉलिसी में क्या कवर्ड होता है? In सूक्ष्म उद्यम and लघु उद्यम, these are the 14 perils which are covered under the fire policies. In standard fire and special peril policy, 2 perils are not there. Because there only 12 perils are covered. So all these perils are also insured under the FLOP policy. In addition, these are the add-on covers insured under the FLOP policy. But if it is taken with the fire policy, 15 add-on कवर स्टैंडर्ड फायर एंड स्पेशल पेरिल पॉलिसी के साथ अवेलेबल हैं। सूक्ष्म उद्यम और लघु उद्यम के अलग, जो भी इसने एड-ऑन ले रखे हैं वो कवर हो जाएगा। अब अगर आपको ये पॉलिसी किसी को देनी है कस्टमर को, तो प्रीमियम कोड तो अंडरराइटिंग ऑफिस, सपोर्ट ऑफिस ने जनरेट करना है। उनको बेसिक इंफॉर्मेशन आपसे चाहिए, बेयर मिनिमम बेसिक इंफॉर्मेशन that includes details of fire policy, basis of accounting, list of standard charges, indemnity period selected by the insured, gross profit selected by the insured, total turnover, whether unit is continued, and the add-on cover selected by the insured.
That means this is the basic information required in the proposal form for generating the quotations by the underwriting department support office. Only on the basis of this information the premium quote will be generated. Policy has some exclusions also. First exclusion is compulsory access. And the compulsory access is not in money, it is in time. FLP पॉलिसी में जो कंपलसरी एक्सेस कटेगा क्लेम पर वो मनी में नहीं है, 1500 काट दिए, 2500 काट दिया, नॉट लाइक दैट, परसेंटेज में भी नहीं है, टाइम में फर्स्ट 7 डेज का लॉस नहीं मिलेगा, उसके बाद जितने दिन का भी है मिल जाएगा। फर्म को रिस्टार्ट करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है और रिस्टार्ट नहीं हो पा रही है तो क्लेम नहीं मिलेगा, क्योंकि एक्चुअल इंटरप्शन पीरियड भी निकालना है, दोनों को कंपैरिजन भी करना है कि इंडेमनिटी पीरियड ज़्यादा है, इंटरप्शन पीरियड ज़्यादा है, क्लेम उसी पीरियड का मिलेगा जो कम हो। अगर कोई लाइसेंस या लीज एक्सपायर हो गया है जिसकी वजह से बिजनेस नहीं रिस्टार्ट हो पा रहा है तो भी क्लेम नहीं मिलेगा। कोई मशीनरी लॉस हुआ है, कोई इलेक्ट्रिकल लॉस हुआ है तो भी क्लेम नहीं मिलेगा। कोई इन्फॉर्मेशन करप्ट हो गई है कंप्यूटर सिस्टम वगैरह की तो भी क्लेम नहीं मिलेगा, क्योंकि ये सब लॉस इस पॉलिसी में कवर है ही नहीं। इसमें तो केवल इनकम और प्रॉफिट का लॉस कवर है। कोई मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल लॉस हुआ वो भी नहीं मिलेगा। इस पॉलिसी में 4 एड ऑन कवर अवेलेबल हैं एफएलओपी पॉलिसी में, जो कि फायर पॉलिसी के अलावा, और ये चारों डिफरेंट है। एक्सीडेंटल फेलियर ऑफ पब्लिक इलेक्ट्रिसिटी, गैस और वाटर सप्लाई, डैमेज टू कस्टमर्स प्रीमाइसेस ड्यू टू पेरिल्स कवर्ड अंडर फायर पॉलिसी, डैमेज टू सप्लायर्स प्रीमाइसेस ड्यू टू पेरिल्स कवर्ड अंडर फायर पॉलिसी, एंड ऑडिटर्स फी। नॉर्मली ऑडिटर्स फी लेते हैं लोग क्योंकि to take the claim under this FLOP policy, you have to submit the books of accounts. आपका अकाउंटिंग पूरा होना चाहिए। अगर मैं कह रहा हूँ कि मेरे को मेरी फैक्ट्री से 12 लाख रुपए सालाना की इनकम, आग लग गई, 6 महीने फैक्ट्री बंद रही, 6 लाख का नुकसान हो गया, 6 लाख का क्लेम दे दी, तो कंपनी कहेगी ये वर्बल जमा खाता नहीं चलेगा, बुक्स ऑफ अकाउंट में दिखाइए कि आप साल का कितना कमाते हैं, आपके पास इतना स्टॉक भी है, इतनी सेल भी है, तो आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट कंप्लीट होनी चाहिए, या इतने सामान को रखने की जगह भी है। एवरीथिंग हैज टू बी चेक्ड। जब पॉलिसी इंश्योरेंस कंपनी दे रही है तब तो कुछ भी चेक नहीं किया जा रहा ना, बट एट द टाइम ऑफ लॉस एवरीथिंग विल बी चेक्ड, सर्वेड एंड फिजिकली असेस्ड by the surveyor. The surveyor will ask everything. He will also cross-check the books of accounts. What is the gross profit? What is the net profit? What is total sales turnover? What is the purchases of the stocks? तो ये जो पॉलिसी है, अगर इसमें कोई डायरेक्ट लॉस है, चाहे स्टॉक का है, प्रॉपर्टी का, तो वो उस पॉलिसी में कवर नहीं है, दैट इज पेबल अंडर फायर। लेकिन अगर कोई इनडायरेक्ट लॉस है जैसे लॉस ऑफ प्रॉफिट का, तो वो इसमें पेबल है। जो सब इंश्योर्ड लिया जाएगा या पॉलिसी जो ली जाएगी उसमें ये 4 फॉर्म होते हैं, चारों में से कस्टमर को भी सेलेक्ट कर सकता है अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ बिजनेस। कुछ में टर्नओवर होता है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में टर्नओवर बेसिस पर लेते हैं, कुछ आउटपुट बेसिस पर लेते हैं, कुछ डिफरेंस बेसिस पर लेते हैं, कुछ रेवेन्यू बेसिस पर। इससे आपको फर्क नहीं पड़ता, अंडरराइटर को फर्क पड़ता है सब, क्योंकि वो बिजनेस देखता है। और ये चारों में सिर्फ उनका नेचर ऑफ बिजनेस का डिफरेंस है, बाकी कोई डिफरेंस नहीं। अल्टीमेटली लायबिलिटी इंश्योरेंस कंपनी की वही है कि उसका एक्चुअल ग्रॉस प्रॉफिट, एक्चुअल नेट प्रॉफिट कितना लॉस हुआ है, बाकी तो कोई क्लेम इंश्योरेंस कंपनी ने देना नहीं है इस पॉलिसी में। तो ये चारों बेसिस केवल अंडरराइटर देखेगा।
लेकिन पॉलिसी में बहुत सारी चीज़ें कवर्ड नहीं है। अंडर इंश्योरेंस इज नॉट पेएबल, डिफरेंस इन वैल्यू ऑफ स्टॉक्स एट द टाइम ऑफ फायर इज नॉट पेएबल, डेप्रिसिएशन ऑफ अनडैमेज्ड स्टॉक इज नॉट पेएबल, बैड डेट्स को नहीं पे करेंगे, लॉस ऑफ गुडविल पे नहीं होगी, फेलियर टू रिकवर बुक डेट्स नहीं पे होगा, लिटिगेशन कॉस्ट नहीं पे होगा, लॉस ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट इक्विवेलेंट टू टाइम एक्सेस, यानी 7 दिन का कंपल्सरी एक्सेस है, अगर 7 ही दिन का लॉस हुआ तो इंश्योरेंस कंपनी कुछ नहीं देगी क्योंकि वो कंपल्सरी एक्सेस में कट जाएगा। तो जो पॉलिसी है ये 1 ईयर की है, शॉर्ट टर्म के लिए चाहिए तो शॉर्ट टर्म के लिए दी जा सकती है, लेकिन 1 साल से ज़्यादा की नहीं दी जाएगी, 1 साल के बाद ये रिन्यू हो जाएगी। इसमें पेरिल वही कवर्ड होंगे जो कि फायर पॉलिसी में कवर्ड है। कंपल्सरी डायरेक्शन इज फॉर 1 वीक ओनली। This policy cannot be given if the risk is declined risk, means where you cannot get the fire policy, you cannot get the FLOP policy also. Like mobile shop, cracker shop, plastic manufacturing unit, standalone warehouse, shop dealing in hazardous goods. To them you cannot give the fire policy. And when the fire policy you cannot give, it means FLOP can also not be given. एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देखते हैं प्रीमियम कैसे निकाला जाता है। समझिए FLOP पॉलिसी का प्रीमियम कैसे निकलेगा। जैसे हम इंश्योर्ड लिया पिछले कस्टमर ने 20 लाख का, उसका हो सकता है पिछले साल में 15 लाख का हो, 18 लाख का हो, 24 लाख का हो, लेकिन इस साल उसने एंटिसिपेटेड ग्रॉस प्रॉफिट लिया 20 लाख। इंजीनियरिंग वर्कशॉप है, फायर पॉलिसी ली हुई है, सूक्ष्म लघु उद्यम है क्योंकि उसमें अर्थक्वेक और टेररिज्म ऑलरेडी शामिल है। इंडेमनिटी पीरियड उसने 3 मंथ सेलेक्ट किया है और प्रीमियम रेट उसकी अंडरराइटर ने लगाई है 1.08। 1.08 की प्रीमियम रेट है, सम इंश्योर्ड 20 लाख का है, 20 लाख पर 1.08 से प्रीमियम निकालेंगे। ये प्रीमियम फायर की तरह इसमें FLOP में भी पर मिली होता है। और 20 लाख इंटू 1.08 अपॉन 1000, द प्रीमियम इज ओनली 2160 प्लस GST। सिंपल कैलकुलेशन। और अगर कोई क्लेम का एग्जांपल देखना है, किसी कस्टमर को आपने 30 लाख रुपए की FLOP पॉलिसी दे दी फायर पॉलिसी के साथ, इंडेमनिटी पीरियड भी दे दिया 3 महीने का, मान लिया कोई दुकानदार फ्लड आई, फ्लड से उसका सारा स्टॉक डैमेज हो गया और दुकान उसके बंद रही 3 महीने के लिए। नहीं, 3 महीने का इंडेमनिटी पीरियड है, 8 वीक के लिए बंद रही, बिजनेस उसका ठप रहा 8 वीक के लिए। फ्लड आया, फ्लड से लॉस हुआ, 8 वीक के लिए बिजनेस इंटरप्टेड रहा। अंडर इंश्योरेंस नहीं है, सम इंश्योर्ड पूरा लिया उसने। अब उसका क्लेम कैसे पे होगा? इंडेमनिटी पीरियड है 3 मंथ, 3 मंथ में होते हैं 12 वीक। एक्चुअली उसका इंटरप्शन पीरियड रहा है केवल 8 वीक, तो 3 महीने से इंटरप्शन पीरियड 8 वीक है तो वो कम, इंश्योरेंस कंपनी कम वाला पे करे, यानी इंश्योरेंस कंपनी की लायबिलिटी 8 वीक का पे करने की है। और उस 8 वीक में से 1 वीक कंपल्सरी एक्सेस है, यानी कि उसको निकाल दो, 7 वीक का ही क्लेम पे करना। 30 लाख का सम इंश्योर्ड है तो 30 लाख में 7 वीक का कितना बना? 1 साल में 52 वीक होते हैं, 52 से डिवाइड कर दिया, 30 लाख पर वीक आता है 57,962.30। ऐसे 7 वीक्स को मल्टीप्लाई कर दिया तो 4,03,846 आ गया। सिंपल कैलकुलेशन। कंपल्सरी एक्सेस आपने काट दिया 1 वीक का, और कुछ काटेगा नहीं। तो क्लेम सेटल करने का तरीका यही है।
अब क्वेश्चन ये आता है कई बार कि साहब फायर पॉलिसी तो उसने किसी दूसरी कंपनी से ले रखी है, FLOP हमसे ले। तो ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रेस्ट्रिक्शन तो नहीं है, लेकिन अपनी कंपनी से होता अच्छा है। और अगर दूसरी कंपनी की है तो फायर पॉलिसी उसकी हम ले लेंगे, उसके बाद FLOP देंगे, मतलब कॉपी ले लेंगे। प्रीमियम रेट जनरेट करने के लिए या कोटेशन जनरेट करने के लिए फायर पॉलिसी की डिटेल भी चाहिए, ग्रॉस प्रॉफिट भी चाहिए, इंडेमनिटी पीरियड भी चाहिए, क्लेम हिस्ट्री भी चाहिए, एडवांस कवर भी चाहिए। उसके बेसिस पर जनरेट होगा। और जो प्रीमियम रेट लगेगी वो ग्रॉस प्रॉफिट, ऑक्यूपेंसी और एडवांस कवर और इंडेमनिटी पीरियड क्या सेलेक्ट किए उसके बेसिस पर लगेगी। अगर आपको याद हो तो कोरोना पीरियड में लॉकडाउन लगे थे, और ये लॉकडाउन लगे थे गवर्नमेंट ने लगाए थे, और लंबे लगे थे, 6-6 महीने के लॉकडाउन थे। और उस पीरियड में जबकि लॉकडाउन लगा हुआ है, स्कूल, कॉलेज, फैक्ट्री, दुकान, होटल सब बंद। उस पीरियड में, और सारे कोरोना तो सारी दुनिया में था, ऑल ओवर वर्ल्ड, एवरीवेयर द लॉकडाउन्स वर देयर। So when the businesses were closed, shops were closed, markets were closed, nobody was there in the market to buy. Lockdowns were there. The people who were having fire policy plus FLOP policy, they filed the claim on insurance companies. जिनके पास FLOP पॉलिसी थी, जिनकी फैक्ट्रियां बंद हो गई, कॉर्पोरेट ऑफिसेज बंद हो गए, उन्होंने इंश्योरेंस कंपनियों पर FLOP में क्लेम फाइल किए पूरी दुनिया में। और दुनिया भर की सारी इंश्योरेंस कंपनियों ने वो सारे क्लेम खारिज कर दिए। क्यों? क्योंकि ये जो लॉसेज हुए हैं, FLOP तो क्लेम तब पे करेगी ना जब फायर पॉलिसी में क्लेम पेबल हुआ हो। फायर पॉलिसी कौन से रीजन से क्लेम पे करेगी भाई? लॉकडाउन की रिस्क फायर पॉलिसी में तो कवर है नहीं। फायर पॉलिसी में 14 रिस्क कवर है, उनमें से किसी से लॉस हुआ हो तो क्लेम पे हो जाएगा। लॉकडाउन इज इम्पोज्ड बाय द गवर्नमेंट, तो उस वक्त ये सारे क्लेम खारिज हो गए। लेकिन उसके बाद इतनी अवेयरनेस बढ़ गई, कस्टमर ये समझ गए कि ये एक ऐसी पॉलिसी है जिसमें एक अकेली रिस्क कवर होती है, लॉस ऑफ इनकम की, लॉस ऑफ प्रॉफिट की। और अगर फायर से, फ्लड से, साइक्लोन से, अर्थक्वेक से, किसी और रीजन से अगर कोई लॉस हो रहा है तो जो भी लॉस ऑफ इनकम हुआ है वो पे हो जाएगा। इसलिए लोगों में अवेयरनेस बढ़ गई। अब आपको याद हो, उससे पहले हमारे पास केवल पैकेज पॉलिसी के नाम पर बिजनेस प्रोटेक्टर पॉलिसी थी। तो बिजनेस प्रोटेक्टर पॉलिसी में तो FLOP सेक्शन नहीं है, लेकिन उसके बाद 3-4 लगातार पैकेज पॉलिसी बनाई गई। श्री शॉपकीपर, ऑफिस केयर, होटल एंड रेस्टोरेंट, एजुकेशन शील्ड, और इन सब में FLOP सेक्शन डालेंगे। तो आज कोई कस्टमर अगर पैकेज पॉलिसी ले रहा है और पैकेज पॉलिसी में फायर प्लस FLOP दोनों सेक्शन है, तो उसको दूसरा फॉर्म भरने की जरूरत नहीं है, उसी में सेलेक्ट कर देंगे। केवल बिजनेस प्रोटेक्टर पॉलिसी में ही ऐसी सिचुएशन है क्योंकि उसमें FLOP सेक्शन नहीं है, तो अलग से प्रपोजल फॉर्म भरवाया जाएगा। अब पॉइंट ये है कि फायर पॉलिसी के बिना तो FLOP मिलेगी नहीं। हम नहीं, दुनिया की कोई भी इंश्योरेंस कंपनी नहीं देगी, बिकॉज FLOP एंड फायर पॉलिसी इज द कॉम्बिनेशन
नॉर्मली पहले फायर प्लस बर्गलरी को लोग कॉम्बिनेशन मानते थे, वो भी है आज के डेट में भी, लेकिन फिर ये वहाँ मैंडेटरी नहीं है फायर के साथ बर्गलरी को लेना, इच्छा पर। यहाँ अगर एफएलओपी सेक्शन लेना है तो फायर को लेना मैंडेटरी है। तो यहाँ बिना फायर पॉलिसी के एफएलओपी पॉलिसी नहीं मिलेगी। और आपको ये ध्यान रखना है, जब भी आप किसी कस्टमर को एफएलओपी पॉलिसी दे रहे हैं तो शॉपकीपर को छोड़ करके बाकी के लिए कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। बाकी सब कोई इंडेमनिटी पीरियड सेलेक्ट कर सकते हैं, कोई भी सम इंश्योर्ड सेलेक्ट कर सकते हैं, कोई भी प्रीमियम रेट जो फायर की रेट लगेगी वो लग रही है। लेकिन शॉपकीपर के लिए, शॉपकीपर देखिए कॉमर्शियल यूनिट्स में सबसे छोटी एंटिटी होती है। अगर आप कॉरपोरेट को, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को, माइक्रो इंडस्ट्रीज़ को, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को अगर कंपेयर करेंगे तो दुकानदार तो सबसे छोटा आदमी या सबसे कम कॉस्ट का बिजनेस है उसका। बड़े से बड़े शोरूम भी आप देखेंगे, कपड़े के, जूते के, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स के, कितना सामान होता है, 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़, 5 करोड़, इससे ज़्यादा तो नॉर्मली नहीं होता। ये भी मैं बहुत ज़्यादा बता रहा हूँ। बाकी सामान की दुकानों में तो 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख। तो शॉपकीपर को जब आप सम इंश्योर्ड दे रहे हैं तो आपको फायर के सम इंश्योर्ड का 25% मैक्सिमम होगा, उससे कम का दे सकते हो, ज़्यादा का नहीं। अगर फायर का सम इंश्योर्ड 40 लाख है तो आप उसको एफएलओपी 10 लाख से ज़्यादा की नहीं देंगे। इंडेमनिटी पीरियड वो 6 महीने चाहता है तो नहीं मिलेगा, 3 महीने ही मिलेगा मैक्सिमम। इसमें भी लॉस अगर इंटरप्शन पीरियड ज़्यादा तो 3 महीने का मिलेगा। इंटरप्शन पीरियड अगर इससे भी कम है तो जो लोअर होगा उसका मिलेगा। प्रीमियम रेट इसका 360 रुपीज़ पर लाख फिक्स है, 360 रुपीज़ पर लाख प्लस जीएसटी। 10 लाख का अगर एफएलओपी दिया है आपने तो 3600 रुपये प्लस जीएसटी 18%। So policy is very simple, and you are already selling this, so there is no difficulty at all. अब किसी का कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। Any questions? मुझे आप में से ईमेल आईडी चाहिए। धीरज जी टीम में ऑलरेडी है। अच्छा ठीक है, गुड।